This Okay, conference will now be recorded. so we started to understand about the basic of virtualization, and now let's talk about VMware Cloud. आपका क्वेश्चन है कि I'm unable to understand about the concept of VMware Cloud. ठीक है? So you know that VMware is a separate vendor which is responsible to manage our virtualization. वर्चुअलाइजेशन के केस में वी हैव एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे हाइपरवाइजर की बात कर लें, is a type of virtualization. OpenStack is a type of virtualization. Citrix also a type of virtualization. As it is, VMware can provide multiple software, right? VMware provide multiple software that help us to create our own virtual environment. Plus, we have a cloud technology. VMware and cloud both are different to each other that help us. VMware can help you to set up your own environment with the help of physical hardware. इस केस में आपको सर्वर खुद खुद से अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. यू आर ऑनर ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर. बट क्लाउड के केस में क्या होता है ना, यू कैन प्रोसीड, यू जस्ट नीड टू परचेज द सब्सक्रिप्शन. आपको क्या परचेज करना पड़ता है? आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, and using subscription you are able to buy any resources from the cloud portal. बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. एक आपका टोटली प्राइवेट है, ये पूरी तरीके से 100% प्राइवेट इन्वायरमेंट सेटअप होता है यहाँ पे. एंड ये अपने पास जो है इसको हम पब्लिक सेटअप बोलते हैं या पब्लिक इन्वायरमेंट बोलते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक इन्वायरमेंट. The meaning of public environment is basically anyone can sign up ourselves over a cloud, or anyone can purchase the resources that are available in our subscription. कोई भी resource purchase किया जा सकता है. So what VMware did, VMware ने कांटेक्ट किया हर एक क्लाउड प्रोवाइडर से, AWS से, Azure से, गूगल क्लाउड से एंड अलीबाबा क्लाउड से, सबसे कांटेक्ट किया. और इन्होंने क्या किया, VMware प्लस क्लाउड एक इनकी यू कैन से दैट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है. VMware क्लाउड सेटअप किया इन्होंने. और VMware क्लाउड का मतलब है कि आपको कोई भी हार्डवेयर नहीं इस्तेमाल करना है ऑन प्रोमाइसेस का. आप VMware का पूरा इन्वायरमेंट क्लाउड के पोर्टल पे अपना बना सकते हैं. आपको वी सेंटर सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा. You can find the ESXi, you can manage your VDI solution if you want to create anything. तो आपको डायरेक्टली पोर्टल पे VMware के प्रोडक्ट मिल जाएंगे. तो इस केस में बेनिफिट ये होता है कि नो नीड टू यूज एनी हार्डवेयर. आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन से ही किसी न किसी पोर्टल की हेल्प से, AWS भी VMware क्लाउड प्रोवाइड करता है, एज्यूर भी VMware क्लाउड प्रोवाइड करता है, इवन VMware का खुद का अपना पोर्टल है जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. If you don't want to add any hardware, you don't want to proceed with your own hardware, तो आप VMware cloud पे जा सकते हैं. This is the actual meaning. Our responsibility to cover each and every point related to the VMware local environment, जिसको हम private setup कहते हैं, जिसमें से हमने already discuss किया था कि we are responsible to manage ESXi, we are responsible to manage the vCenter server, we will perform the task related to the domain controller और शेयर स्टोरेज. ये सभी पॉइंट हम अपने टॉपिक में कवर करने वाले हैं. इज दैट ओके? Everyone, please confirm if Yes, you're sir. able to understand about the Yes, yes. concept of VMware Cloud. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Sir, ठीक I है. have Now, let's talk. another query regarding Your voice is the too basic low. Can you please? VMware. आपकी आवाज बहुत स्लो आ Sorry. रही है. Sir, I आपकी have आवाज another बहुत query. स्लो है. Yes, sir. Now clear, sir?
No. Hello. Now Hello. I can hear you. Yes, sir. Yes, yes. I have another query regarding basics of VMware. That you mentioned that Hyper-V that is integrated with Microsoft, right? So Hyper-V is an हाँ जी. example of Type 1 hypervisor or bare metal hypervisor. So Bare metal hypervisor. or Type 1 hypervisor, right? Microsoft Hyper-V. Sorry, Exactly. Hyper-V. Exactly. But sir, it Exactly. is integrated with OS, na. So then why should we call it as an Type 1 hypervisor? Because for that, if we want to use Hyper-V, then we need to install operating system on the base machine. Then only we Definitely. can, We need to. So that is my question. Okay. So I know most of engineer experienced guy ask so same question like if we need to install OS, then install our hypervisor. So why we need to consider it as a hypervisor type 1? इसको हम bare metal क्यों बोलते हैं? Basically, hypervisor, yes, it's a type of feature which is available in Windows Server operating system. विंडोज सर्वर का एक यूनिक फीचर है जो हमें वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. बट if we talk about the installation of our server operating system, why hypervisor type of bare metal? ठीक है, टाइप ऑफ bare metal. इन दिस केस जब हम OS इंस्टॉल करते हैं, अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू इंस्टॉल सर्वर 2016, राइट, या 2012 या कोई सा भी सर्वर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, you wanted to set up your environment with server 2012 or 2016 या 2019, we have a two different way to install our server. One is core installation. पहला हमारा है core installation. Another is in desktop experience or like Exactly. और दूसरा है अपने पास GUI जिसको हम डेस्कटॉप GUI. एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं. Yes, CLI ठीक and है. GUI. Yeah. So whenever we proceed with core installation, you are unable to find any application or you are unable to find any option related to the GUI. आपको ग्राफिकल कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है CLI पे मैनेज किया जाएगा, राइट. Exactly. Whenever we perform the task in CLI in core installation, we are able to install hypervisor as well. इस core मशीन पे हम hypervisor को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. और जब आप हाइपर वी को इंस्टॉल करते हैं अपने व्हाट वी कैन से दैट CLI के मोड में, इसमें जितने भी हार्डवेयर आपने यूज कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल यू एस्टैब्लिश 32 gig ऑफ रैम and up to 4 core of processor and up to 100 gig of hard drive, just a example, hypothetical कि ये अपने पास configuration है and you proceeded to install your operating system server machine with the help of core installation. In the core installation what exactly happen, ये पूरा का पूरा हार्डवेयर आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म बन जाता है. मीन्स ये पूरा का पूरा हार्डवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, नॉर्मल वर्चुअल मशीन्स के लिए. इस 32 गिग रैम को आप मल्टीपल VMs में कैटेगराइज कर सकते हो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, दैट्स वाई इट कंसीडर एज ए बेयर मेटल, क्योंकि बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन में जो भी हार्डवेयर रहता है वो हार्डवेयर पूरी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने VMs को सेटअप करने के लिए. इज दैट ओके? And every Yes. organization prefer to Yes. establish Hyper-V using core installation. For installation. Yes. Then Yes, sir. Yes. Microsoft also describe in the documentation of Microsoft कि जो Hyper-V है ना वो पूरी तरीके से bare metal virtualization है.
क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से यू आर एबल टू सेट अप योर इन्वायरमेंट फॉर वर्चुअलाइजेशन विदाउट कंज्यूमिंग एडिशनल हार्डवेयर। बिना एडिशनल हार्डवेयर के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना एडिशनल हार्डवेयर के कंजप्शन से को मीन्स बिना हाई को हार्डवेयर कंजप्शन पे भी हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं पूरी तरीके से। इज दैट क्लियर? दैट इज द रीजन इसको बेयर मेटल Okay. बोला जाता है। Okay. दिस इज ऑल अबाउट, एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, और आई होप कि यू गाइस आर good with the content that we completed, because today I'm going to show you the virtual machine management using ESXi 7.0. These all are the topics that we have already completed कि virtual machine configuration कैसे होता है, ESXi में कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ VMs को ऐड कर पाएंगे, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। कोर्स के बारे में Yes. देखा था हमने, CPU कोर को डिवाइड करके देखा था, रैम को डिवाइड करके देखा था। एंड नाउ दीज ऑल आर द पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट हमें आज कंप्लीट करने हैं। नॉट इन टायर आज हो पाएगा तो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द ईच एंड एवरी पॉइंट। क्रिएट VM, कॉन्फ़िगर VM, वर्चुअल मशीन फाइल, mount the operating system, installation of operating system, configure virtual machine, every point we will cover in this particular class। और इसको बोला जाता है L1 level of activity। we can say that this is L1 टास्क। ये जो जितने भी टास्क है ना, ये हमारे L1 लेवल के टास्क कहलाते हैं। L2 लेवल के टास्क क्या होते हैं वो भी हम आपको गाइड करेंगे। L3 लेवल पे आपको क्या क्या करना पड़ सकता है रियल एनवायरनमेंट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सेकंड सेशन है अपना VMware का, तो डेफिनेटली हम पहले L1 से स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? Our ESXi is almost ready to use, and RAM हमने इसमें 9.2 gig के आसपास प्रोवाइड कर रखी है। We have a 2 core of processor, and we are getting IP address started from 192.168.1.22. So our responsibility to take the RDP, our GUI of our ESXi, because you know that पहले हम GUI पे बात करेंगे। 1.22, प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो भी हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रोवाइड किया था, आप उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए अपने ESXi होस्ट को लॉगिन कराने का काम करें। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक एडवांस्ड और यहाँ पे प्रोसीड टू अनसेव। अंडर द प्रोसीड टू अनसेव इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर नेम ऑलवेज कंसीडर एज ए रूट। डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है जिसको हम एडमिन के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा रूट होता है, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी यूजर यहाँ पे बना सकते हैं। कस्टमाइज यूजर फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल। क्लिक ओके, एंड दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ आवर ESXi। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। if your ESXi is working, if your ESXi part is okay, then definitely you are able to manage any kind of troubleshooting। किसी भी तरीके की ट्रबल शूटिंग को आप आसानी से मैनेज कर सकते हो अगर आपका ESXi का पार्ट कंप्लीट है तो। इज दैट ओके गाइस? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes. Okay, so I'm just going to create one virtual machine, because you know that we are able to find multiple options are available, and I'm going to start from the virtual machine। VM पे राइट क्लिक करते हैं, एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, क्रिएट VM। वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ऑप्शन वी हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। पहले हम फ्रेश VM क्रिएट करेंगे, देन डिप्लॉय OVF एंड OVA फाइल, रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग VM। ये 3 मेथड हैं किसी भी ESXi होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन को तैयार करने के लिए।
If you want to set up a virtual machine for any ESXi, we have a three different way. ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों स्टेप की सहायता से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, राइट? पहले हम क्रिएट वीएम वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, फ्रेश वीएम बनाते हैं, ओएस वगैरह इंस्टॉल करेंगे। टाइप द नेम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ भी नेम दे दो, विंडोज 10 हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। गेस्ट ओएस में विंडोज सेलेक्ट करेंगे। वर्जन में ऑलवेज ट्राई टू इंस्टॉल 64 बिट, क्योंकि अगर आप 64 बिट नहीं सेलेक्ट करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट यू, इट विल इम्पैक्ट वाइल माइग्रेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, माइग्रेशन के टाइम पे इट विल नॉट हेल्प यू, सो दैट्स व्हाई विल प्रोसीड फॉर 64 बिट। नेक्स्ट, Sir, अनफॉर्चुनेटली what will happen if we check the there was an option use virtual platform based security or like that? What is the difference between the normal or this these options if we enable Windows virtualization with security? Hello. the latest version of ESXi can provide this particular option. If you want to enhance the security related to the Windows based, like as if you have a UEFI BIOS, अगर Okay. आपका BIOS UEFI है and you wanted to provide the security from the booting process, आप Yes. सिक्योर Yes. बूटिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं विंडोज के रिलेटेड, तो यू मस्ट नीड टू चेक मार्क इट, बट मेक श्योर कि आपका जो सीपीयू है ना, आपका जो बोर्ड है, उस बोर्ड पे आपके पास यूएफआई बेस्ड बायोस लगा है, नॉट इन लेगेसी। दो ही बायोस है अपने पास, एक लेगेसी है और दूसरा यूएफआई बायोस। UEFI है लेगेसी इज अ ओल्ड बायोस, यूएफआई इज द लेटेस्ट बायोस। latest. अगर आप Okay. बूटिंग को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप बूटिंग प्रोसेस को सिक्योर करना चाहते हैं, then you must need to configure, you must need to activate this particular option, जिससे आपकी वर्चुअल मशीन जो है बूटिंग से ही प्रोटेक्टेड रहेगी। Okay. इज दैट So ओके? this is much more secure. मच मोर सिक्योर इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल वर्चुअल मशीन, यस। Normal. Okay. Yeah. Thank you. Clear. नाउ वी आर अनेबल टू फाइंड एनी स्टोरेज। आप देखिए यहाँ पे हमें कोई भी स्टोरेज ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओनली द रीजन ऑफ फ्रॉम ESXi 6.7 इन्होंने डिवाइड कर रखा है, from 6.7 Microsoft updated, ESXi updated that you are unable to use the hard disk that you provided for your ESXi, जो ESXi के इंस्टॉलेशन के लिए आपने इस्तेमाल किया है ना, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। Got it what I'm saying? Yes. Got it. पहले पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल आपने एक ESXi, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रिएट वीएम, कॉन्फ़िगर वीएम, ठीक है, और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं मैनेज वीएम। ये तीनों पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो व्हाट हैपेंड विद ओल्ड वर्जन ऑफ ESXi, पुराने वर्जन के जो ESXi होस्ट होते थे या होते हैं 6.5 के पहले के, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ESXi होस्ट। यहाँ पे हमने एक ESXi होस्ट इस्टेब्लिश किया। इस ESXi होस्ट की कैपेसिटी मान लेते हैं 16 गीग ऑफ रैम, and 2 core of processor, 2 CPU core and maybe 100 gig of hard drive, ठीक है। तो मीनवाइल मैं एक बार हार्ड डिस्क को अटैच कर देता हूँ। ये अपने पास HDD की डिटेल हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव की डिटेल हो गई।
So what happened with the old version of ESXi, अगर आपने यहाँ पे 100 gig का स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, like in our case we provided 100 gig of storage for ESXi, and now आप इस 100 gig में दो टास्क परफॉर्म करते थे. ESXi भी इस पे इंस्टॉल होता था, प्लस you are able to create the virtual machine. We are able to create a virtual machine plus ESXi. तो प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें, बंदे क्या करते थे स्टोरेज बचाने के लिए, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB ऑफ हार्ड ड्राइव मींस नॉर्मल हार्ड डिस्क उसमें भी नहीं रहती थी, 1-2 TB को कंज्यूम करने के लिए वो क्या करते थे, ESXi कितना कंज्यूम करेगा, हार्डली 200 गिग, बहुत हो गया 200 गिग स्पेस, एंड वी हैव अ रिमेनिंग 800 गिग. तो लोग क्या करते थे रियल एनवायरनमेंट में ये 800 गिग को इस्तेमाल करते थे टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. इस 800 GB में मल्टीपल VMs को क्रिएट कर लेते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका बेस ESXi डैमेज होता था तो वी विल लॉस द वर्चुअल मशीन एज वेल. अगर आपने सेम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जिसमें आपने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, सेम हार्ड डिस्क में आपने वर्चुअल मशीन तैयार कर ली, ESXi डैमेज हुआ तो वी विल लॉस द वर्चुअल मशीन एज वेल. कोई भी ऑप्शन नहीं है रिकवर करने के लिए. ये है आपका ESXi 5.5 से लेकर के, ठीक है, 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में अगर आप ESXi इस्तेमाल कर रहे हैं, 5.0 नॉट 5.5, 5.0 टू 6.5 तक कोई भी ESXi वर्जन यूज करोगे तो आपको फैसिलिटी मिलेगी. बट फ्रॉम ESXi 6.7 ऑनवर्ड, 6.7 टू लेटेस्ट 8.0, इनमें से कोई भी ESXi होस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हो ना, तो इन दिस केस व्हाट एग्जैक्टली हैपन, आपने जो भी हार्ड डिस्क असाइन किया है, फॉर एग्जांपल यू असाइन 1 TB ऑफ हार्ड ड्राइव, 1 TB हार्ड डिस्क आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इसमें केवल ESXi ही इंस्टॉल कर पाएंगे. यू आर अनेबल टू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन. बेनिफिट इसका ये है कि जो वर्चुअल मशीन है इसके लिए आपको दूसरी हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी. एक हार्ड डिस्क आपको ESXi होस्ट के लिए देना पड़ेगा, दूसरी हार्ड डिस्क वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी की लगाना चाहते हैं, दूसरी हार्ड डिस्क जो रहेगी वो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन के लिए रहेगी. Is that clear? Which is applicable for hard disk 1 for ESXi, hard disk 2 for our virtual machines. The benefits of to adding multiple hard drive, अगर आपका पहली हार्ड डिस्क ESXi डैमेज भी हो जाता है ना, हमारी जो वर्चुअल मशीन है ना वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगी. Got it what I'm saying? That is why VMware can change from backend. ओके सर. सर इस केस में एक ठीक है, क्वेश्चन था रियल टाइम हाँ, में. हेलो. हाँ, एक I क्वेश्चन can था hear you, फॉर please. रियल टाइम में. हाँ, रियल टाइम में मान के चलिए मेरे पास एक सर्वर है, उसमें मेरा 2 रेड है. ओके. तो उसमें मैंने डेडिकेटेड ESXi इंस्टॉलेशन के लिए एक मैंने रेड 1 के चलिए कर लिया, रेड 1 कर लिया, एंड मैंने स्टोरेज के लिए एक अलग सा उसमें रेड 5 या रेड 6 कर लिया. तो अगर मैं चाहता हूँ तो रेड 5 या मेरा जो स्टोरेज है, तो स्टोरेज के अंदर पार्टीशन बना के उसमें मैं VM क्रिएट कर सकता हूँ. Definitely we can do that. अगर आप सेपरेट पार्टीशन लगाना चाहते हैं तो we can do that. ओके. बिकॉज सर क्या था, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ एक्चुअली. मैंने ट्राई किया था, मेरा लाइव एनवायरनमेंट है वहाँ पे इंस्टॉलेशन की, तो रेड 0 मेरा रेड 1 था, तो उसमें मैंने ESXi OS इंस्टॉल किया. अब मेरा रेड 6 के ऊपर मेरा 13 TB स्टोरेज था. तो हम्म, 13 TB स्टोरेज जब मैं ESXi में अपना जो स्टोरेज का ऑप्शन है वहाँ से जब मैंने उसको पार्टीशन क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसमें मैंने उसमें चाहा कि 2 TB का एक अलग पार्टीशन क्रिएट करूँ, रेस्ट ऑफ द जो मेरा बाकी स्पेस है उसको मैं अलग एज एन डेटा स्टोरेज यूज करूँ. बट जब भी मैं 2 TB का पार्टीशन क्रिएट करता हूँ ना, बाद में जब एडिशनल पार्टीशन में बाकी 10 TB को लेके क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो पार्टीशन मुझे दिखाई नहीं देता. रेस्ट ऑफ द जो अनस्पेसिफाइड जो डिस्क है, एक्चुअली ये सिनेरियो
लिखा हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इसमें हम कर सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबिलिटी? We can say we can do that. ओके ओके ओके। Anything else? नो सर। प्लीज प्लीज प्रोसीड। Okay. Now back to the ESXi, और यहाँ पे हम एक हार्ड डिस्क ऐड करने वाले हैं because we wanted to create our virtual machine. तो VM बनाने के लिए you should connect at least different hard drive. We don't want to use we are not authorized to use our hard disk that we added for our ESXi, क्योंकि ESXi में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो definitely we will lose the data, we will lose the virtual machine basically. तो Sir, एक if यहाँ your पे हम ESXi is no, no, if sorry, ESXi is running, so on the running condition, how we can connect another hard disk? in case of VMware ESX workstation आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा. Okay, इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट अगर आपके पास जो मदरबोर्ड है उसमें हॉट स्वैपेबल ऑप्शन इनेबल करके आप रनिंग मशीन में कोई हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या रनिंग मशीन में कोई हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ते अपने सिस्टम के ऊपर. बट okay. ये जो मेक श्योर ऑप्शन कि है, आपका जो सॉरी ये जो ऑप्शन है, ये मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेट होता है या फिर ये मतलब हाँ जी, VMware में ऑप्शन है इसका? नहीं नहीं नहीं, दिस इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन वेंडर. आप बोर्ड कौन सा यूज कर रहे हो. अगर आपके पास ओके MSI का 350 बोर्ड है, हार्ड स्वैपेबल सपोर्टेड है, लेटेस्ट ये MSI का 6000 है, हॉट स्वैपेबल सपोर्टेड है, लेटेस्ट कोई भी बोर्ड आप उठा लो वो सभी आपको ऑप्शन देते हैं टू हॉट स्वैप योर हार्ड ड्राइव. कोई भी साटा हार्ड डिस्क पाटा हार्ड डिस्क आप रनिंग मशीन में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं. उसके लिए रिबूट करना नहीं है मतलब नॉट नो रिक्वायर्ड, नीड टू नॉट रिबूट? no ओके need to reboot, yeah, no need to shut down our server. ओके। Done. I'm just going to access it because we turn on our ESXi host. हार्ड डिस्क लगाने के बाद हमने ESXi होस्ट को टर्न ऑन किया है. बैक टू द ESXi, refresh the page and try to open it. रूट पे जाएंगे and we just need to log in. Go to the storage. Still we are unable to find the storage because you need to activate it. आपको इसको activate करना पड़ेगा. I'm just going to click data store, create new VMFS data storage. जो हार्ड डिस्क आपने 60 गिग की हार्ड डिस्क अभी अटैच की है ना, वो हार्ड डिस्क आपकी यहाँ पे एसोसिएट होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए. क्लिक नेक्स्ट. We are able to find SSD 60 gig of hard drive. I'm just going to type the name local HDD. ठीक है, local hard disk drive. Next. I wanted to utilize the entire 60 gig hard drive. No need to सर make any यहाँ पे changes. ही Next. मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा था सर। Hmm. फॉर एन एग्जांपल, अगर एक स्टेप सर बैक करेंगे प्लीज। यहाँ पे सर मान के चलिए, ये जो आफ्टर में अगर मैं फुल नहीं लेना चाहता हूँ एज एन पार्टीशन, तो इसको मैं मान के चलिए 50 GB मैंने लिया, तो 10 GB जो रिमेनिंग है उसको मैं बाद में पार्टीशनिंग कर सकता हूँ क्या? Exactly. आप उसको ये किसी भी नहीं, VM के साथ बट सर उसमें नहीं आ किसी रहा भी था एक्चुअली पार्टीशनिंग इसमें। आप 60 की का स्पेस है आपके पास टोटल, राइट. हम्म, You wanted to utilize, you wanted to share only
मान चलते हैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू सर्व ओनली 40 गीग ऑफ हार्ड ड्राइव, 40 40 जीबी gig. इसमें देना चाहते Yes. हैं, 20 गीग हम बचा के रखना चाहते हैं, राइट? Yes. तो इस हार्ड डिस्क को आप क्या कर सकते हो ना, बाद में इन केस ऑफ अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप एग्जिस्टिंग Mhm. हार्ड डिस्क को, एग्जिस्टिंग डेटा स्टोर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। Exactly. इज दैट ओके? चलो मैं इसमें Yes. 40 गीग ही प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है? 20 जीबी अपने पास रिमेनिंग बचा है। इज दैट करेक्ट? Mhm. Yes. फिनिश करेंगे एंड वेट, वी आर एबल टू फाइंड हाउ मच स्पेस वी हैव। 39 पॉइंट समथिंग, Oh, मतलब लगभग 40 जीबी के yes. आसपास अपने पास स्पेस 40 GB. अवेलेबल है। बट Yes. रिमेंबर, हमने हमें जो शेयर स्टोरेज टीम ने कितना प्रोवाइड किया था, 60 गिग का, 60 और gig. हमने उसमें से कितना यूज कितना किया, 40 gig. 40 गिग। इट मींस दैट वी हैव अ 20 गिग रिमेनिंग स्पेस। Yes. You consumed the entire space in next 3 months. Within 3 months you utilize the entire space. आपने क्या किया, 3 महीने में पूरा का पूरा स्पेस आपने कंज्यूम कर लिया। So what you need to do, Yes, sir. so in this case अगर आपको इसको इंक्रीज करना है, we just need to select it। यहाँ पे इंक्रीज कैपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, एड एंड एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग वीएमएफएस, सेम डेटा स्टोर से आपको इसको ऐड करना है, या वी हैव अ डिफरेंट डेटा सेंटर। तो आप सेम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर आता नहीं है एक्चुअली। नहीं यहाँ पे सॉरी, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एक्सपैंड एंड एग्जिस्टिंग वीएमएफएस। यहाँ पे आपको एक्सटेंड एंड एग्जिस्टिंग वीएमएफएस डेटा स्टोर, वी डोंट हैव अ डेटा स्टोर, एक्सपैंड एंड ओके एग्जिस्टिंग, यहाँ पे ऐड नहीं करना है आपने, एक्सपैंड करना है, ओके। ठीक है? सो सर ऐड की जो जगह पे रिमेनिंग expand। मेरा 20 जीबी है, तो उसको हम्म। मैं, अच्छा अच्छा यहाँ पे एक्सपेंड करना है। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, प्लीज प्रोसीड। As a VM admin, it's our responsibility, as a VM admin, it's our responsibility कि हमें कुछ ना कुछ बकेट में इमरजेंसी पर्पज के लिए स्टोर करके रखना होगा, रखना है। ठीक है ना? जितना भी स्पेस है ओके। वो पूरा स्पेस हम इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करेंगे, जितना भी स्पेस है वो पूरा स्पेस हम नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसमें हमें विद इन सेकेंड क्लाइंट को सोल्यूशन देना होता है, विद इन सेकेंड हमें स्पेस प्रोवाइड करना होता है अपने स्टोरेज, अपने सिस्टम को, मीन सिस्टम इन द सेंस जो वर्चुअल मशीन है। इज दैट क्लियर? सर यस सर, क्लियर। सर एक बात बताइए, ये जो मेरा 20 जीबी है, तो इसको लेके मैं दूसरा डेटा स्टोर बना सकता हूँ क्या? दूसरा डेटा स्टोर नहीं, क्योंकि आप ना एक्सपैंड कर सकते हैं इसमें, पार्टीशन इसको अलग से स्टोरेज नहीं बना सकते। ओके, एक ही बनेगा बस। लर्न एक ही है ना, लॉजिकल यूनिट नंबर एक ही है, इट्स बेस्ड ऑन द लर्न, ओके 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 ठीक है? क्योंकि स्टोरेज ने आपको एक ओके। लॉजिकल यूनिट नंबर असाइन कर दिया। पसंद स्टोरेज कर टीम दिया, के यस लिए, यस। स्टोरेज टीम के लिए यू आर ऑनर ऑफ 60 गिग, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने स्मार्ट तरीके से उसको यूज किया कि आप पूरा स्पेस न यूज करके कुछ बचा के रख लेना चाहते हैं, हाइड करके रखना चाहते हैं कि इन केस इमरजेंसी वी आर एबल टू शेयर विद आवर क्लाइंट, वी आर एबल टू शेयर विद आवर वर्चुअल मशीन। ओके चलो ओके सर, अभी गॉट हम इट। इसको एक्सपैंड नहीं करते हैं, वी विल एक्सपैंड इट लेटर, बट वी सक्सेसफुली एडेड आवर स्टोरेज। if we talk about the storage, so we added a 40 gig of hard drive, and we will use the same machine for same storage to create virtual machines। back to the virtual machine, और यहाँ पे एक फटाफट से VM तैयार करते हैं। create VM, VMFS के थ्रू न्यू वर्चुअल मशीन नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, विंडोज 10, विंडोज 64 बिट मैंडेटरी है। आगे चल के अगर आप फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करेंगे, आगे चल के आप HADRS डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपकी वर्चुअल मशीन 32 गिग में है, 32 बिट्स में है, आप FT नहीं कॉन्फ़िगर कर पाओगे। और FT ना कॉन्फ़िगर कर पाने का मतलब है कि आप लाइव माइग्रेशन नहीं करोगे, पिंग फेल हो जाएगा। तो वी मस्ट नीड टू डू दैट। 64 बिट नेक्स्ट, स्टोरेज आ गया, अब वी आर एबल टू पुट आवर डेटा, वी आर एबल टू पुट आवर वर्चुअल मशीन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरेज। नेक्स्ट, ठीक है, as per the prerequisite required
48 gig ऑफ हार्ड ड्राइव, बट इतना हम नहीं प्रोवाइड करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद 15 gig बहुत है अपने लिए. 37 point something में से we wanted to assign how much? 15 gig of space to our virtual machine. Next, location, definitely local HDDI, and this is thin provisioning, which is really important for us. And it's our responsibility why we need to use three different options. तो इसको हम दूसरे तरीके से इसको सर एक डिस्क्राइब बार करने वाले हैं. एलाबोरेट करेंगे, ये क्या है Yeah, मतलब sure, sure. ऑप्शंस? That's why I just copied it. यस यस. क्योंकि ये ना बहुत पंगे करता है, समझ में नहीं आता ये, कितना भी कोशिश कर लें. तो ये तीनों ऑप्शन थे अपने पास दैट वी नीड टू नो. यस सर. We have a thin provision, we have a thick provision lazy, and thick provision eagerly. We have a three different option, and we wanted to create a virtual machine, or VMware asking which hard disk you want to select, which storage you wanted to select. और यहाँ पे हम कर देते हैं हार्ड डिस्क की कैपेसिटी. सो हाउ मच स्पेस यू वांटेड टू प्रोवाइड. अभी हम कितना स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं? आई थिंक 15 गिग, 15 जीबी के आसपास स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं हम लोग. इज दैट करेक्ट? Somewhere in sir. सॉरी, I didn't understand sir. please repeat for me. वीएम हम हेलो. तैयार कर रहे हैं. यहाँ पे वीएम को हमने हाँ 15 15 जीबी GB, डिसाइड हाँ. कर रखा है. Okay, out of 15 जीबी 30 40 GB we are assigning 15 GB. Yes yes. हम इसमें असाइन करना चाहते हैं. 15 जीबी वी हैव इनफ स्पेस, लेकिन हम पूरा स्पेस नहीं देंगे. करेक्ट? Yes. ओके. एंड नाउ वी नीड टू नो अबाउट, क्योंकि आप एज ए वीएम एडमिन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट कि कौन से स्पेस में हमें बेनिफिट मिलेगा. We have option of thin provision, second option thick provision lazy eagerly, and lazy zeroed, और तीसरा ऑप्शन है thick provision provision Eagerness eagerly zero. zero. So we should know about the meaning of these three different options. ठीक है? These three different options can help us to manage our, what we can say that, storage services. How we can do that? So let me explain you about the concept of these three different points. तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थिन प्रोविजन की. एक्चुअली में जो मीनिंग होती है ना यहाँ पे थिन प्रोविजन, आपने कितना स्पेस दिया है? 15 जीबी का स्पेस 15 दिया. यू GB. प्रोवाइडेड आपको 3 गीगा ऑफ स्पेस. अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया अपनी वर्चुअल मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए, 15 जीबी का स्पेस, तो ये क्या करेगा? ये पूरी 15 जीबी का स्पेस आपने प्रोवाइड कर दिया, बट आपका जो एक्चुअल यूसेज है हार्ड डिस्क का, एक्चुअल यूज ऑफ स्टोरेज, वो है 5 जीबी का. ठीक है? एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर स्टोरेज 5 जीबी का. इन Okay. दिस केस थिन प्रोविजन क्या करेगा ना, आपके 15 जीबी में से सिर्फ 5 जीबी ही कंज्यूम करेगा, बाकी की 10 जीबी आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल रहेगा. ये चीज क्लियर हुई? Okay. Yes sir. Hello. I can hear you. Yes. ठीक है. नाउ इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे प्रिफर टू सेट अप आवर वर्चुअल मशीन यूजिंग थिन प्रोविजन. इसका बेनिफिट क्या है? थिन प्रोविजन का बेनिफिट क्या है कि कभी कभी क्लाइंट की Storage. उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एज ए क्लाइंट, ठीक है, यू आर वर्किंग एज ए क्लाइंट इन द सेंस, और आपने रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी 500 गीग ऑफ हार्ड ड्राइव. 500 जीबी की हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट आपने अपने VMware टीम से बोली, और
VMware टीम ने आपको 500 जीबी की हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर दी। आपका एक्चुअल यूसेज था सिर्फ 200 जीबी का। आपका एक्चुअल यूसेज था 200 जीबी का और आपने रिक्वेस्ट कितने की कर दी? 500 जीबी की। 3 साल तक, 4 साल तक आप केवल उसी 200 जीबी में ही काम चला रहे हैं। 500 जीबी आपने मांगा था, 200 जीबी में आपका काम चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके लिए उस 300 जीबी का कोई मीनिंग नहीं निकलता, बट बैकएंड टीम के लिए वो 300 जीबी का लॉस्ट होगा। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. जितने दिन तक आपका वो 300 जीबी आपके उस हार्ड डिस्क में उस पर्टिकुलर वीएम के साथ अटैच रहेगा, बैकएंड टीम यानी VMware की टीम उस पर्टिकुलर 300 गिग की स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. नाउ बट थिन प्रोविजन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि क्लाइंट हमारा कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा, कितने की भी डिमांड करेगा, बट हम उतना ही शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उतना ही शेयर करेंगे, बट थिन प्रोविजन में शेयर करेंगे, ताकि एटलीस्ट उसको अगर यूसेज नहीं है ना, 15 जीबी मांग करके वो सिर्फ 5 जीबी का डेटा रख रहा है, तो 10 जीबी को हम किसी दूसरे मशीन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इन केस ऑफ थिन प्रोविजन, केवल और केवल थिन प्रोविजन के केस में। इज दैट क्लियर? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Clear. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिक प्रोविजन लेजी जीरोड। इसमें क्या होगा? यहीं पे सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास एग्जांपल है। इस केस में इस केस में क्या होगा कि अगर आप 15 जीबी का स्पेस आप प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपका विद इन सेकेंड वो पूरा का पूरा 15 जीबी स्पेस ये कंज्यूम कर लेगा। लेजी जीरोड के केस में क्या होगा, पूरा का पूरा 15 गिग स्पेस आपका कंज्यूम कर लेगा। डेटा आपका सिर्फ 5 जीबी हेलो। है, बट आपको टोटल दिखाएगा ये 15 गिग स्पेस यूटिलाइज। इज दैट ओके? Yes, sir. I think Jitendra sir is telling something. या प्लीज। Jitendra sir. Okay, sir. I have a question regarding thin provisioning. You have told that हम्म। कि जब कंज्यूम हेलो। मतलब हेलो। वी कैन हियर यू, हाँ सर प्लीज गो आवाज अहेड। यस सर। सॉरी, मेरा आज इंटरनेट नहीं चल रहा मेरे यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यू कैन ट्राई और टू कनेक्ट विद योर मोबाइल फोन ना, कि एटलीस्ट थोड़ा सा आप मोबाइल से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल से भी नहीं हो पा रहा, पूरा नेटवर्क ही डाउन हो गया सर। ओके। या प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट थिन यस प्रोविजन। आप कुछ यस क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे ना? हाँ अब हाँ बोलो हाँ प्लीज। सर मैं मेरा ये क्वेरी था मान के चलिए जब मैं स्टोरेज पार्टीशन बनाया ड्यूरिंग ओएस इंस्टॉलेशन तो मेरा जो हम्म। डेटा स्टोर था 40 जीबी का उसमें से मैंने 15 जीबी दे दिया ओके थिन ओके। प्रोविजनिंग करके दे दिया ओके अब ठीक है। उसमें से फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया 5 जीबी स्टोरेज मेरा एक्चुअल में यूज हो रहा है राइट तो रियल यूसेज। बाकी जो आप बोल रहे हो कि 10 जीबी स्टोरेज मेरा यूज नहीं हो रहा है तो ये दस हम्म। जीबी क्या मेरा डेटा स्टोर में मर्ज होगा या फिर एज एन पार्टीशन ही ये 10 जीबी रहेगा इसमें क्लाइंट के लिए जिस भी वीएम के लिए आप असाइन करोगे ना, उसको 15 जीबी हाँ ही दिखाई पड़ेगा। ओके आपने इस वीएम को 15 जीबी असाइन किया, ठीक है? हाँ इसका इसका पूरा का पूरा 15 जीबी ही रहेगा, बट अगर आप यूसेज देखोगे ना,
तो यूसेज आपका लो रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल, आप 2 मिनट दो, बिना प्रैक्टिकल के ये ओके समझ नहीं पाओगे। आपने स्पेस कितना दिया है यहाँ ओके। पे? 15 GB का, इज दैट करेक्ट? 15 GB का, यस 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 टोटल यस। स्पेस कितना था? 37 पॉइंट समथिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू हाँ क्रिएट एक वीएम हम यस। थिन प्रोविजन पे बना रखे हैं, दूसरी वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं थिक प्रोविजन लेजी पे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और आप आसानी से समझ पाओ इसको। यस विंडोज 8 की वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं 64 बिट पे, और इस बार हम देने वाले हैं हार्ड डिस्क 15 GB अगेन। अगेन आई वांटेड ठीक टू प्रोवाइड द प्रोविजन। 15 GB ऑफ स्पेस, बट दिस टाइम विल प्रोसीड विथ थिक प्रोविजन, ठीक है? ओके नेक्स्ट, फिनिश। 2 VM हमने क्रिएट किए यहाँ पे। अब आप बताइए इसमें से, लेट मी रिफ्रेश, आप बताइए इसमें कौन सी हार्ड डिस्क आपकी थिन पे है, कौन सी हार्ड डिस्क थिक प्रोविजन पे है? यहाँ से तो विंडोज 10 जो है वो अननोन है, मतलब वो मेरा थीम प्रोविजनिंग में है, बिकॉज उसमें रियल जो कोई यूज कोई यूसेज ही नहीं है उसमें हार्ड डिस्क का। नहीं है, यूजेज नहीं है हार्ड डिस्क का। और दूसरी वर्चुअल मशीन देखो, वो पूरा का पूरा स्पेस ही कंज्यूम कर रखा है। इवन वी हैवंट टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन, हमने वीएम का ही कंप्यूटर, वीएम को ही ऑन नहीं किया। तो सर इसमें वही था कि आपने जैसे बताया ना कि बैकएंड टीम जो है, जो स्टोरेज टीम है, उनके लिए ये जो 15 GB फॉर एन एग्जाम्पल जो रह गया, मान के चलिए 15 GB मैंने दे दिया, 40 GB आउट ऑफ 40 GB मैंने 10 GB दे दिया, और 15 GB दे दिया, बट 10 GB यूज हो रहा है, 5 GB तो उसमें मेरा जो रहेगा, राइट। तो स्टोरेज टीम मतलब उसको कैसे, फिर उसके पास मतलब कैसे सेव कैसे होगा फिर स्टोरेज अल्टीमेट, तो सर सॉरी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, फॉर एन एग्जाम्पल विंडोज 10 में जो मशीन है यहाँ पे जिसमें अननोन दिखा रहा है, इसमें हाँ आपने हाँ, 15 GB थिन प्रोविजनिंग के साथ दे दिया, राइट। तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम को ऑन करूँ, राइट, तो फिर ये ओके, मेरा जो 37 GB का जो स्टोरेज था वहां से ये स्टोरेज यूज करेगा, यही ना? जितना 37 में रिक्वायरमेंट है से, उतना यूज 37 में मेरा। से तो यूज करेगा, बट 15 GB हाँ ही कंज्यूम कर पाएगा ना स्पेस। अब आप देखिए हाँ हाँ, कितना स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है, फोर 4 GB, पॉइंट नाइन ओके 4 GB। ओके, बिकॉज 4 GB, मैंने मशीन को ऑन किया तो मशीन के अंदर की जो फाइल्स है ना वो बूटिंग में जा चुकी है। अब आप देखोगे ना ओके इसको, तो ये बूट करने लगा होगा ये सब साइज से। ओके। तो सर यहाँ मेरा पे अभी देखो। डेटा स्टोर में जैसे देखिए ये हाँ, 4 GB यूज कर रहा है, राइट, और दूसरा ठीक है, मशीन मेरा 15 GB का 15 GB पूरा यूज कर रहा है, ठीक है, तो अभी 15 करेक्ट, चार 19 GB, तो फिर मेरा डेटा स्टोर में 14 GB माइनस 19 GB इतना मेरा शो करेगा, राइट? एग्जैक्टली। ओके, अब गॉट इट अगर सर। आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो आप देखोगे एग्जैक्ट, 16 GB के 22 GB ऑफ फ्री स्पेस। ओके, गॉट अब इट आप लिस्ट गॉट करिए इट 29 में से 19 गॉट इट GB गॉट इट स्पेस सर। कंज्यूम, ये यस आपका यस, गॉट इट एक्चुअल लिखा है। गॉट इट सर, गॉट इट। हेलो सर। हेलो। आई कैन हियर यू प्लीज। यस सर, मैं आज मेरा नेटवर्क नहीं चला था तो इसलिए बहुत डिले हो गया, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे ख्याल से इन्होंने पूछ लिए होंगे, सुब्रजीत को मैंने बताए थे। सर एक तो सर सर अभी तो वहां फर्स्ट तक नहीं अगर पूछा, स्टार्ट अभी करते वहां हैं तक नहीं तो गया अभी। हमने सुब्रजीत तुमने सर को, अच्छा अभी सर सर हमने ना EXI होस्ट जो है इंस्टॉल किया था बेस मशीन। हेलो। कैन यू प्लीज ड्रॉप अ मैसेज? आप हेलो। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, तो आप व्हाट्सएप कर दो या फिर चैट में आप क्वेश्चन लिख के भेजो, ओके है ना? तो वो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, तो सबके लिए बेस्ट हो ओके जाएगा कि एटलीस्ट हमें क्वेश्चन मालूम पड़ गया तो इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्लाई करते हैं। ओके। चलो, now I hope you guys understand about the gap between thin provision and thick provision lazy zero. यहाँ तक क्वेश्चन ओके हो गया? यस Can we proceed for next? यस सर। चलो, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यस सर। अबाउट, तीसरा ऑप्शन है अपने पास थिक
प्रोविजन ईगरली जीरोड, देखो Yes. दोनों में Hello. कोई गैप नहीं है। Yes. Yes. हेलो, Sir, actually, your voice is breaking. Actually, कैन यू प्लीज चेक योर इंटरनेट स्पीड, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे साइड स्पीड का कोई पंगा होगा। आप प्लीज इंटरनेट स्पीड देखो। just ठीक है, अपलोडिंग भी ठीक ठाक आ रही है, 50 से ज़्यादा ही है, 100 के आसपास डाउनलोडिंग है। now okay, sir. It's clear. हम्म, Now clear, sir. Now clear. It's clear. ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, नाउ लेट मी गाइड यू अबाउट द गैप बिटवीन थिन प्रोविजन लेजी जीरोड एंड ईगरली जीरोड। इन दोनों में गैप क्या है? बहुत ही मैनवर्ड सा गैप है। लेजी जीरोड क्या है ना, लेजी जीरोड क्या है मैं आपको यहीं पे गाइड कर देता हूँ, ताकि आप जब नोट्स बनाओ अपना ना, तो उसमें आप मेंशन कर लेना अपने हिसाब से। ये स्लो परफॉर्मेंस देता है, स्लो स्पीड। दूसरा, माइग्रेशन नॉट सपोर्टेड। ठीक है, इसमें आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क को रख रखा है किसमें, लेजी जीरोड में। प्लस फॉल्ट टॉलरेंस, आपको फॉल्ट टॉलरेंस का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने थिन प्रोविजन लेजी सेलेक्ट किया है। सेकेंड, अगर आपने थिक प्रोविजन ईगरली सेलेक्ट किया है तो ये सभी ऑप्शन सपोर्ट करता है, माइग्रेशन, एफटी और फॉल्ट टॉलरेंस। साथ ही साथ इसमें जो कंजप्शन होगा ना, जस्ट लाइक अ थिन प्रोविजन, जैसे थिक प्रोविजन में पूरा का पूरा 15 GB कंज्यूम हुआ था, एज इट इज थिन थिक प्रोविजन लेजी जीरो में भी 15 GB का स्पेस टोटली कंज्यूम हो जाएगा। इज दैट ओके? एक बार रिपीट करेंगे इसको सर दोबारा से? थिन प्रोविजन, थिक प्रोविजन यू आर टॉकिंग? कैन यू रिपीट अगेन सर? Yes, योर yes, वॉइस I इज think. ब्रेकिंग, अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट। थिन प्रोविजन कैन कंज्यूम द स्पेस एज पर द यूसेज, यहाँ पे जितना यूसेज है ना, केवल उतना ही स्पेस यस को ये सर। कंज्यूम करेगा। और थिक प्रोविजन लेजी क्या करता है, जीरोड क्या करता है ना, जीरोड कैन कंज्यूम द एंटायर स्पेस। आपका एक्चुअल यूसेज क्या है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 20 GB स्पेस प्रोवाइड कर रखा है तो वो पूरा का पूरा 20 GB का स्पेस कंज्यूम कर लेगा विद इन सेकेंड। इट विल नॉट सपोर्ट, इट विल नॉट सपोर्ट द फॉल्ट टॉलरेंस या माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता, फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट नहीं करता। और साथ ही साथ इसकी स्पीड जो है वो स्लो रहती है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल थिक प्रोविजन। एक प्रोविजन लेजी की बात करें, ईगरली की बात करें, तो थिक प्रोविजन ईगरली के केस में क्या होता है ना, कि यू आर एबल टू मैनेज द हार्ड डिस्क, इसकी स्पीड हाई रहती है और माइग्रेशन सपोर्ट करता है और एफटी आल्सो सपोर्टेड, but it will consume the entire space just like a thick provision lazy. That means, sir, main difference is between thick, lazy zero and early zero is performance and feature of migration and FT. That's it. Migration FT both. Both. That's it. And performance like Mm, speed. correct. Okay. Is that okay? Yes, sir. Yes.
डन, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। वन इंस्टेंस वी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ थिक प्रोविजन, और दूसरा हमने थिन प्रोविजन से क्रिएट कर रखा है। थिन एंड थिक बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, तो मैं दूसरी हार्ड डिस्क को, दूसरी वर्चुअल मशीन को रिमूव कर दे रहा हूँ। नाउ दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, और सेकेंड स्टेप में हम इसमें देखने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स की फाइल को, which is really important for us. We must need to know about the virtual machines file that we will get in our virtual machines property. VM को ओपन करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में हमें मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलेगी। एज ए VM admin, it's our responsibility. We should know about the usage of these files. ठीक है? Okay, sir. Done. Open virtual machine, and we know that we don't have any operating system. यहाँ पे हमारे पास कोई भी operating system नहीं है, so we will install one operating system in this particular VM and then discuss again. Okay, sir. ठीक है, so can we take a small break, 10-minute break? जितना टॉपिक हमने कंप्लीट किया उसको आप कंप्लीट कर लो, and we'll connect in Okay. next 10 minutes. Is that okay? Okay, sir. Okay. Sir, I actually have one question. Jitendra sir also has put the same thing on chat box. Actually, it's a real-time scenario. Can I ask now or later after the break? Uh, After break we'll discuss about the question. Okay? Okay, thank you. Yeah. This conference will now be recorded. Click data store browse and select your virtual machine that you created. अब देखिए यहाँ पे we are able to find multiple files are available, and these files can help us to manage our virtual machines activity. जो VM की एक्टिविटी है, जो आप टास्क परफॉर्म करेंगे VM के साथ ना, वो सभी आप इन्हीं फाइल्स के थ्रू ही मैनेज करेंगे। सो दैट्स वाई फॉर एवरी वर्चुअल इंजीनियर, हर एक वर्चुअल इंजीनियर के लिए, VMware एडमिन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो अबाउट द यूसेज एंड वर्क ऑफ दीज फाइल्स। तो एक एक फाइल के बारे में हम आपको गाइड करने वाले हैं, एंड these files can help us in case of troubleshooting. जब हम इसमें troubleshooting का पार्ट ऐड करेंगे, जब हम VM को troubleshoot करेंगे, that time it's mandatory we should know about the usage of these files. तो हम इसमें इसकी एक्टिविटी को फाइनल करेंगे। We are able to find n number of files are available. Let me guide you about each and every point. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, we just need to discuss about the log file. यहाँ पे हमने log file से स्टार्ट करना है। We just need to know about the concept of log file. लॉग फाइल क्या करता है ना, कि अब जितनी बार VM को टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करेंगे, जितनी बार मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, उतनी लॉग फाइल्स यहाँ पे बनती जाएगी। आई एम गोइंग टू गिव यू द वन लाइव एग्जांपल। VMware.log फाइल अवेलेबल है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप वर्चुअल मशीन। एक ही फाइल थी, आपने देखा यहाँ पे वी हैव ओनली सिंगल फाइल, VMware log की एक ही फाइल थी, और हम यहाँ पे VM को टर्न ऑफ कर रहे हैं एक बार फॉर द टेस्टिंग पर्पज, पावर ऑफ कर देते हैं and then power it on again. Power off किया हमने, and let me power on. And back to our VMware files. स्टोरेज में जाओ आप, डेटा स्टोर पे जाओ आप, डेटा स्टोर ब्राउजर पे जाओ और विंडोज 10 को ओपन करो। अब आपके पास लॉग की फाइल कितनी हो गई? 2 _1 करके आ गया एक। जितनी बार आप स्टॉप करोगे, स्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करोगे, आपको फाइल्स जो है लॉग की बनती जाएगी।
और लॉग फाइल्स को यूज करने का मतलब है कि यू वांटेड टू मॉनिटर, you wanted to track the activity of our virtual machine, which is really helpful to troubleshooting. In case of troubleshooting part, it's our responsibility कि we should know about कि इन फाइल्स के जरिए कैसे हम अपनी वर्चुअल मशीन्स का स्टेटस काउंट करते हैं. Is that okay about .log? VMware .log file clear हो गया इसका यूसेज. Okay, sir. Then how we Another can important read, or sir, how we can read that file? is a separate part. It's a separate part. vCenter Okay, सर्वर के okay, केस में लॉग रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे ना, ट्रबल शूटिंग के okay, बारे में okay, बात करेंगे. अभी okay, okay, वी okay, शुड नो अबाउट, वी जस्ट okay, okay. बेस स्ट्रॉन्ग करना है हमें अभी. Yes, Okay. yes. We are able to find two different VSWP, VSWP1, VSWP2, VMX.Windows dot something dot VSWP, Windows 10 dot something dot VSWP. दो VSWP आपको फाइल दिख रही है. The VSWP file can help us to manage the cache memory of our virtual machine. Have you idea about cache memory क्या होती है? Virtual memory क्या होती है किसी कंप्यूटर की? What is use of virtual memory? Not in Anyone? depth, Can you sir. please explain? Sorry. So virtual memory of our uh, virtual memory of our base machine basically related to the you can say that that can help us to manage our मिनिमाइज फाइल. जैसे हर एक सिस्टम में, विंडोज की बात करें, मैक की बात करें, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, आपके पास एक वर्चुअल मेमोरी होती है. आई एम गोइंग टू शो इन विंडोज. आप अगर इसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज. इस पीसी में गए एंड प्रॉपर्टीज पे ओपन करते हैं. नॉट हियर. ओपन माय कंप्यूटर, सी ड्राइव पे गए, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे आप टूल्स पे आ जाओ. sysdm.cpl. ओके, एडवांस में जाओ आप. एडवांस में परफॉर्मेंस का ऑप्शन आएगा. सेलेक्ट द परफॉर्मेंस, क्लिक एडवांस अगेन. अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज वर्चुअल मेमोरी. तो Virtual ये memory, वर्चुअल yes. मेमोरी क्या करता है ना, जब वर्चुअल मेमोरी कैन हेल्प अस. अगर आप मल्टीपल विजार्ड ओपन करते हैं एक ही मशीन में, मल्टीपल विजार्ड ओपन किया, यूट्यूब ओपन कर दिया, गूगल क्रोम ओपन कर लिया आपने, VMware ESXi ओपन कर लिया, वर्क स्टेशन ओपन कर दिया, जब आप मल्टीपल विजार्ड ओपन करते हैं तो जो मिनिमाइज कंटेंट रहते हैं उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल मेमोरी की होती है. Virtual memory responsible to manage our backend data, backend process. जो backend का प्रोसेस होता है वो इसी के थ्रू मैनेज किया जाता है. अगर ये वर्चुअल मेमोरी हमारी सिस्टम में अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू ओपन मोर देन वन विजार्ड. इट विल बी इम्पैक्ट टू अवर द एग्जिस्टिंग, जो भी अपने पास मीन्स एग्जिस्टिंग विजार्ड है उसके बाद जो अगर विजार्ड ओपन करते हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. In case of VMware, VSWP can play the role just like a virtual memory, and the work of virtual memory can help us to enhance the speed of our ESXi plus the virtual machine that we have. ESXi host और virtual machine दोनों के लिए ये responsible है. Is that okay, guys? Please confirm. Yes, sir. ठीक है. अगला पॉइंट है एनवी रैम. यहाँ पे आप देखिए एनवी रैम. तो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ एनवी रैम एज पर द नेम सजेस्ट नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो एनवी रैम क्या होता है कि सिंपल सी बात है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन, इसकी जो जिम्मेदारी है ना, ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन
बायोस, जो हमारा बायोस होता है उस बायोस को ये कंटेन करने का काम करता है। NVRAM रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द बायोस सेटिंग ऑफ आवर ESXi होस्ट, बायोस सेटिंग ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। जो हमारी वीएम है उस वीएम के बायोस को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? NVRAM की। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने रियल इन्वायरमेंट में, यू आर फेसिंग सम इश्यूज विद आवर वर्चुअल मशीन, बायोस नहीं ओपन हो रहा है, बायोस में प्रॉब्लम आ रही है, बूट नहीं हो पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी नीड टू चेक द NVRAM। इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने वर्चुअल मशीन के बायोस को कंट्रोल कर सकते हैं, बायोस को मैनेज कर सकते हैं। VMDK is a main file that contain the operating system and data। जो भी डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे अपलोड करेंगे ना, वो आपकी VMDK फाइल स्टोर करेगा। VMSD फाइल स्नैपशॉट को कंटेन करेगा। स्नैपशॉट आपने कितने नंबर ऑफ स्नैपशॉट लिए हैं एंड उसकी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी डेट को आपने स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया, वो सारी इंफॉर्मेशन VMSD में आएगी। .pmx रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितनी लगा रखी है आपने, प्रोसेसर कौन सा है एंड उसमें यूएसबी पोर्ट कितने लगे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपकी .bmx फाइल में रहेगी। bmx.log एक हॉट प्लग होता है। जब आप अपने ESXi होस्ट के अंदर हॉट प्लग को एक्टिवेट कर देते हैं तो bmx.log काम करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि रनिंग मोड में, चलते हुए कंप्यूटर में प्रोसेसर और रैम को आप बढ़ा सकते हैं। Tilda file, it's a supported file that help us to manage the entire hardware in running condition of our virtual machine। ये इंफॉर्मेशन है जब आप VMware के अंदर ESXi 7.0, 5.0, 6.0, 8.0 किसी भी VM में, किसी भी ESXi में अगर आप वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं ना, तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ये वर्चुअल मशीन की फाइल एक जैसी मिलेगी और इनकी हेल्प से हम अपने VMware इन्वायरमेंट में ट्रबल शूटिंग करते हैं। इज दैट फाइन? सर अभी आपने जो बताया कि विंडोज 10 डॉट वी एम एक्स फाइल जो है ये हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है, राइट? उसका एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशंस को। यस तो यस। इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस हमने फिजिकल वीएम पे जो रैम, हार्ड डिस्क कैपेसिटी या फिर प्रोसेसर कैपेसिटी जो हम दे रहे हैं उसको स्टोर करता है, राइट? एग्जैक्टली, उनकी इंफॉर्मेशन इसमें रहती ओके है। ओके ओके। ठीक है, इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट इज यूज ऑफ .vmx, तो आप फटाफट से बोल देंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। वीएम में रैम कितनी है, उसमें यूएसबी पोर्ट कितना दे रखा है, निक कार्ड कितनी कैपेसिटी का लगा है, हार्ड डिस्क क्या लगी है, उन सब की जानकारी हमें VMX फाइल से मिल जाएगी विद इन सेकेंड। ओके। क्लियर? यस सर। सर VMDX रिपीट करेंगे सर? VMDK और VMDK यू आर टॉकिंग? Yes, sir. VMDK and VMDX. Can you repeat again, sir? नहीं, VMDX कोई फाइल नहीं है ना, VMDK है, ये आपकी मेन ऑपरेटिंग हाँ सिस्टम हमने फाइल होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। दूसरी है सर that VMSD, means VMDK is just a virtual hard disk, if we say. वर्चुअल हार्ड डिस्क, मेन ये तो हार्ड डिस्क आप बोल दो सर। वर्चुअल डिस्क जिसमें कि हमारा OS स्टोर होगा। हाँ जी, OS, C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी आपने पार्टीशन बना रखे है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी VMDK में रहेगी। एंड VMSD सर? स्नैपशॉट डेटा, आपकी वर्चुअल अच्छा। मशीन का कितने टाइम स्नैपशॉट क्रिएट किया आपने, उसकी इंफॉर्मेशन इसी फाइल से मिल जाएगी। इज दैट ओके? यस। Yes, yes, है ना? yes. ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको मैच करना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम अपने VMware को CLI से एक्सेस करेंगे पुटी से ना, तो इन्हीं फाइल के अंदर एडिट करके हम वर्चुअल मशीन की ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो अगर रियल इन्वायरमेंट में आपकी VM कोई टर्न ऑन नहीं हो पा रही, उसका बायोस नहीं काम कर रहा है, उसमें उसका स्लो परफॉर्मेंस जा रहा है, तो ये फाइल्स के अंदर चेंजेस कर करके हम अपनी वर्चुअल मशीन को ट्रबल शूट करते हैं इन रियल इन्वायरमेंट। इज दैट ओके? Yes, सो sir. दैट्स व्हाई सर इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। फाइन। ओके सर।
Okay, give me 1 minute. Rohan, Yogesh, Mayur, please stay in meeting. Just allow me 5 minutes. Conclude करते हैं VMware की क्लास, उसके बाद हम एज यू स्टार्ट कर देंगे. So please stay in meeting, stay in Yeah, lobby. sure, Sure, sir. sure. Sure, thank you. Okay, so let me check the contents that we need to cover in case of virtual machine management. L1 लेवल के टास्क पे हैं हम अभी, बिकॉज इट्स आवर सेकेंड सेशन ऑफ VMware, तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. बाकी आपका जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो आप नोट करते चलो और हर दूसरी क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे. So I think we completed these 3 different points: create virtual machine, configure virtual machine and virtual machine file हमने डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे इन तीनों पॉइंट में कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन या उसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसमें कोई कंफ्यूजन या मींस डिस्कशन है तो प्लीज लेट मी नो. You have a 5 minute time because I need to start another session. Okay. Sir, Okay, Sir, hello. I can hear you. Hello. Please go ahead. Hello. Sir, मेरा क्वेश्चन है. हेलो. I can hear you. Please आप Hello. बोलिए, क्वेश्चन बोलिए. हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो जो डेटा स्टोर है ना, सपोज स्टोरेज पर्सन तो ऐड किया कुछ लान, तो वहाँ पे स्टोरेज का ऐड करने के बाद वो डेटा स्टोर को जो ये होता है ना EXI का वो ऐड हुआ, तो कुछ टाइम में वर्चुअल मेमोरी सपोज कुछ माउंट का एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो दोनों डिफरेंस कैसे करोगे? सपोज एक VMware डेटा स्टोर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, सपोज एवरी टाइम में कुछ VM मशीन बहुत ऐड होता है, हजार की 1000 की 2000 ऐड होता है मे बी, तो सब एवरी टाइम में कि डेटा स्टोर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा ना, वन डेटा स्टोर आएगा वहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये जस्ट क्लियर करो इसको. समझ गए? वर्चुअल मशीन के अंदर आप वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच करने की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ करेक्ट. देखो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि हाउ इट कैन वर्क इन रियल इन्वायरमेंट. आपके VM के रियल इन्वायरमेंट में स्टोरेज काम कैसे करता है? करेक्ट. दिस इज आवर ESXi होस्ट, राइट? और इस ESXi होस्ट में आपने एक स्टोरेज लगा रखा है. दिस इज आवर स्टोरेज. ओके, ठीक है, ये अपने पास स्टोरेज है. ओके. द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 1 TB के आसपास. ठीक है, द स्टोरेज शेयर स्टोरेज की कैपेसिटी है 1 TB. इसमें से आपने एक छोटा सा पार्ट अप्रोक्सीमेटली 300 GB आपने असाइन कर दिया अपने ESXi को. ओके. ये 300 GB आपने असाइन कर दिया किसको? अपने ESXi को. इसको बोला जाता है लन. ओके. अब ये 300 GB का हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में आ गया. अब आप इसी का यूज करके क्या कर रहे हो? वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो. और आपकी वर्चुअल मशीन 300 GB है, सर एक सेकंड, ये 300 GB है, ये ऐड करना पड़ेगा, जो पहले वो देखा था वो वाला ऐड करना पड़ेगा. 3 GB का डेटा स्टोर अलग नाम हो जाता है एक तो. हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कोई सा भी नाम दे दो. शेयर स्टोरेज में जब आप हार्ड डिस्क ऐड करोगे ना स्टोरेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो. नो इशू. सपोज मैं एक ही नेम में एक्सटेंड कर सकता हूँ, पॉसिबल है? एक ही नेम आइडेंटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो. ओके. सपोज मेरा आइडेंटिफिकेशन में नंबर अभी डेटा हम से नहीं नहीं आप देखिए इसमें क्या होता है. अभी हम ट्रेनिंग में हैं, तो ट्रेनिंग में हम कितना बड़ा सेटअप बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 हार्ड डिस्क, तीन तीन ESXi बना लेंगे, 2 डेटा स्टोर रख लेंगे. बट जब आप प्रोडक्शन में काम करते हो ना, तो आपको 5 से 6 डेटा स्टोर दिखाई पड़ेंगे. और अगर ओके. आपने गलती से भी किसी दूसरे डेटा स्टोर में अपना डेटा रख दिया ना, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, डेटा स्टोरेज टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. इसीलिए जो टास्क हमारा है इस डेस्कटॉप पे, इस स्क्रीन पे जो भी आइकन दिख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है. स्टोरेज जो आ रहा है वो स्टोरेज टीम की जिम्मेदारी है, बट एटलीस्ट जो हमारे पास है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे. तो आप नाम रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने मिसमैच कर दिया डेटा की लोकेशन को, तो आप बैकअप और रिस्टोर में प्रॉब्लम आ जाएगी. फिर ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएंगे आप अच्छे से.
क्लियर? ये बोले क्लियर हो गया। सपोज जो टाइम हम लान का एक्सटेंड करना, सपोज कुछ माउंट पॉइंट एक्सटेंड कर सकता है, तो यहाँ पे न्यू लान का ऐड करना पड़ेगा ना, वो जो एग्जिट जो हार्ड डिस्क है वहां से ऐड करके वहां पे लान लेता है। दोनों ऑप्शन हैं। आप स्टोरेज टीम को बोलो कि जो आपने 2 महीने पहले 300 जीबी हार्ड डिस्क दे रखी थी हमें, आप उसको 500 जीबी बना दो, ठीक है? ओके तो बैकएंड टीम क्या करेगा, वो बैकएंड से एक्सटेंड कर देगा, इसको क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा बैकएंड से। और आपको सिर्फ ओके अपना जो लॉजिकल यूनिट नंबर है इसको आपको केवल रिफ्रेश मारना रहेगा, ठीक है? ओके आप रिफ्रेश करोगे, 300 जीबी की हार्ड डिस्क जो थी, स्टोरेज था, वो 500 जीबी दिखने लगेगा। एक पहला ओके ऑप्शन ओके ये है, ठीक है? आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना पार्टीशन ही बना के दे दो, तो आप रिक्वेस्ट करेक्ट। करोगे कि मुझे दूसरा लॉजिकल यूनिट नंबर दे दो, इसकी कैपेसिटी आप रख दो 500 में 500 जीबी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता न्यू है, लान होता है। जो टीम है वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो आप चाहो तो लर्न 1 और लॉजिकल यूनिट नंबर 2, लर्न 2, दो इंफॉर्मेशन आप कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक ही लॉजिकल यूनिट नंबर में एग्जिस्टिंग स्पेस को बढ़ा सकते हो। दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल। इज दैट फाइन? यस यस। डन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी? आप रिकॉर्डिंग देखो प्लीज, आप रिकॉर्डिंग देखो एक बार, और कल की क्लास में इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, राइट? एंड ठीक गाइस है ठीक है प्लीज ठीक ट्राई टू कनेक्ट एट 6 PM है। IST, हाँ हाँ। ताकि हमें प्रॉपर 2 घंटे श्योर मिल जाए इसमें, और ओके आगे के बैचेस है ना वो भी ना डिस्टर्ब हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है श्योर। चलो ठीक है, थैंक यू सो सर मच, विल शेयर ठीक द है। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 1 आवर, और कल कनेक्ट होते हैं 6 सर PM। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कल था सर, शिफ्ट मेरा है। एक बस। या हेलो प्लीज। हाँ हाँ, आई कैन हियर यू सर, ब्रो। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ यस सर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी VM5 और VM6 आता है जैसे वर्जन, तो उसमें छोटा सा पूछना था, इसमें क्या डिफरेंस है सर दोनों में? यू आर टॉकिंग अबाउट ESXi वर्जन और VMX वर्जन? VM5 सर, जब हम VMX, इंस्टॉल करते हैं ना VM मशीन को, तो वहाँ पे हाँ, ऑप्शन आते हैं एक VM5 और VM6, तो सर ये बताएंगे सर इसमें क्या मीनिंग है इन दोनों में? वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय देखो, एक BMX, एक BMFS5 होता है, BMFS6 होता है। हाँ उसी की बात है। हाँ। BMFS5, BMFS6, ये क्या होता है, वर्चुअल मशीन का जो हार्ड डिस्क प्रोवाइड करते हैं उसका फाइल फॉर्मेट होता है, हम्म, ठीक है? जैसे आप NTFS की बात करते हो, FAT16 की बात करते हो, FAT32 की बात करते हो, उसी तरीके से हम्म, ESXi होस्ट में स्टोरेज ऐड करते समय VMFS5 डेटा स्टोर या फिर VMFS6 डेटा स्टोर आपको ऑप्शन मिलता है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें, तो VMFS फाइल जो 5 डेटा स्टोरेज है वो आपके ओल्ड वर्जन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपके पास है 5.0, 5.5, 6.0, तो आपको केवल VMFS5 मिलेगा। दैट फाइन? ओके। अगर आप 6.5 पे यस जाते सर। हो, 6.7 पे जाते हो, 7.0 पे जाते हो, या ऑनवर्ड 8.0 पे जाते हो, तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। 5.5 ओके ऑनवर्ड, 5.5 ऑनवर्ड आपके पास दोनों VMFS6 का और 5 का दोनों ऑप्शन रहता है। बट 6.0 के पहले के ESXi के पास सिर्फ और सिर्फ VMFS5 का ऑप्शन मिलेगा। इज दैट ओके? ओके सर। चलो डन, कल इस पर यस। डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी हम स्टोरेज पे आए नहीं, अभी हम वर्चुअल मशीन पे हैं, तो स्टोरेज में ये सारे क्वेश्चन आप नहीं भी पूछोगे तब भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी स्टोरेज का ठीक है। पार्ट थोड़ा थोड़ा सा है, मे बी कि कल हम खत्म करेंगे VM, तो मे बी नेक्स्ट वीक हम स्टोरेज को कंप्लीट करेंगे। डन? कल कौन सा ओके 6:30 में स्टार्ट हो गया सर? प्लीज, यस सर। 6:30। 6 o'clock, 6 o'clock। ओके ओके ठीक ओके। चलो थैंक यू। सर संडे को मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकता है क्या? सर संडे को मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं हो सकता है नहीं, क्या? मॉर्निंग में ऑलरेडी बैचेस हैं, फिर इधर उधर करने में फ्लो टूट जाएगा अपना, तो ये इसी पे रखो आप, अच्छा ठीक वैसे है। ठीक है ना? सर वो तो ठीक है सर, सैटरडे का जो ये है ना 6 बजे का, ये थोड़ा हाँ, सा मतलब चैलेंजिंग हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज चल हाँ चलो, लेट मी सर, ये डिस्कस। ऑफिस से आने में ना एक हमें बार थोड़ा मैं लेट हो रिकॉर्डिंग जाता है, मैं भेजता आज हूँ, भी लेट हो उस गया पर था सर। आपको डिस्कस, ओके ओके विल डिस्कस, हाँ।
ओके 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 सर, हाँ, एक मैं और रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजता थी हूँ, उसके लास्ट। बाद फिर बात सर करते ये हैं जो कि है ना, क्या जैसे करना हम कोर्स कर रहे हैं ना। है। या हाँ जी, ओके सिलेबस का सर एक बार ओके अगर विवेक, थैंक यू। ब्रीफ दे देते। सॉरी, सर, ये सिलेबस का चाहिए था बस, वो एक लास्ट की भी हम कौन कौन मैं से टॉपिक कवर होंगे सर। पीडीएफ मेल करता हूँ आपको प्रॉपर। ओके सर। चलो, थैंक यू, ओके ओके सर, सर, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, ओके सर। वेलकम।